بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سینٹ یعنی ایوان بالا کے انتخابات خفیہ بیلٹنگ سے ہوں گے یا اوپن بیلٹنگ سے؟ اس حوالے سے سپریم کورٹ اپنی رائے دے گی، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے۔ وزیراعظم عمران خان اور ان کے اتحادی سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے لیے ہر فورم پر جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں اوپن بیلٹنگ کے معاملے کو حکومت کی سازش اور خوف سے منسوخ کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اوپن بیلٹنگ کے معاملے کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے، مگر اس حوالے سے بظاہر وزیراعظم عمران خان کا موقف اب درست نظر آ رہا ہے، کیونکہ سینٹ الیکشن 2018 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی اراکین کی مبینہ خرید و فروخت کی ویڈیو نے سیاست کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے نوٹوں کے انبار لگائے گئے۔ اراکین اسمبلی، جنہیں معزز اراکین کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، جو عوام سے ووٹ لے کر عوام کی نمائندگی کرنے آتے ہیں، عوام کو ان کے مسائل حل کرنے کا لالی پاپ دیتے ہیں، وہ کس طرح عوام کے اعتماد کو پیسوں کے عوض بیچ رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات میں اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر مخالفین کو ووٹ دینے کے لیے بھاری بھرکم رقم وصول کرتے ہوئے جن اراکین کو دیکھا جا سکتا ہے، ان میں مبینہ طور پر موجودہ وزیر قانون سلطان محمد خان سمیت 6 اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ 2018 کی اس ویڈیو میں سابق ایم پی اے عبید اللہ مایار بھی اپنا حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے محمد علی شاہ باچا خرید و فروخت کے لیے رقم پی ٹی آئی اراکین کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سردار جو ادریس ہیں وہ بھی ویڈیو میں موجود ہیں، جنہیں رقم وصول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خاتون ایم پی اے معراج ہمایوں بھی رقم وصول کر کے بیگ میں رکھتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ سابق ایم پی اے نینا خان بھی رقم وصول کرنے والوں میں شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے سینٹ انتخابات میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی اپنے 20 اراکین پہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام عائد کیا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ کرپشن میں ملوث ایم پی ایز کے خلاف مقدمات قومی احتساب بیورو کو بھجوائے جائیں گے، لیکن کسی بھی ایم پی اے کے خلاف کوئی کیس نیب کو نہیں بھجوایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ بعض سابق ایم پی ایز نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف مختلف عدالتوں میں حفظ عزت کا دعویٰ دائر جو مقدمہ ہے وہ دائر کیا تھا۔ اسی معاملے پر سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کی رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ کم از کم 20 ایم پی ایز نے پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا، جس کے باعث تحریک انصاف کے 2 امیدوار خیال زمان اور مولانا سمیع الحق الیکشن ہار گئے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے 2 امیدوار بہمن تنگی اور روبینہ خالد کامیاب ہوئی تھی۔ آج اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد، جس میں خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر قانون کو بھی پیسے لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا ایکشن لے لیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو احکامات جاری کیے ہیں کہ انہیں فوری طور پر وزارت سے ہٹایا جائے، جس پر ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے، لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب 2018 میں ان پر الزامات لگے تو انہوں نے قرآن اٹھا کر ان الزامات کو مسترد کیا تھا۔ تو اس قرآن مجید پر میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے جو مجھ پہ 4 کروڑ روپے کا جو مجھ پر 4 کروڑ روپے کا جو الزام ہے میں نے نہیں لیے، اور میں نے ووٹ اس کے مطابق دی ہے جو پرائرٹی لسٹ مجھے چیف منسٹر نے دی ہے۔ یہ میں قرآن کو حاضر ناظر جان کر میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی اور اپوزیشن جماعتوں کو بنایا ہے شدید تنقید کا نشانہ۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر کا کہنا تھا کہ ابھی سے سینٹ کی نشست کے ریٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، ماضی میں ممبر اپنا ضمیر بیچتے تھے اور پیسہ اکٹھا کیا کرتے تھے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے بھی اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ سینٹ کے انتخابات شفاف طریقے سے ہونے پر بعض اراکین قومی اسمبلی کی دہاڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 2014 میں مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھ کر انتخابی اصلاحات پر اتفاق کیا گیا، لیکن پھر مسلم لیگ نے وہ معاہدہ سرد کھانے کی نظر کر دیا۔ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ان کی دہاڑی بند ہونے والی ہے اگر سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہو جائیں گے۔ جو کروڑوں روپے کی اس وقت بولی لگ رہی ہے اور لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے کہ وہ کروڑوں روپے کمائیں گے اپنا ضمیر بیچ کر، کہ وہ موقع ان سے چھن جائے گا۔ ہم نے سپریم کورٹ کو بھی رجوع کیا، اور کیونکہ الیکشن شیڈیول، سینٹ کے الیکشن شیڈیول کا ٹائم قریب آتا جا رہا تھا، سپریم کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا ہے، اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آرڈیننس لے کے آیا جائے۔ ہم نے مذاکرات کی 2014 میں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا انتخابی اصلاحات کا ایک ایجنڈا لے کر آتے تاکہ یہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ ہنگامہ نہ ہو۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی، سینٹ کے الیکشن بھی ڈسکس کیے گئے، اور اینڈ میں ایک معاہدہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو حکومت وقت تھی اس نے وہ معاہدہ لیا اور انہوں نے ایسے دراز میں رکھ دیا۔
बहरहाल आज वायरल होने वाली इस तहलका खेज वीडियो ने संगीन किस्म के सवालात उठा दिए हैं। आखिर पैसों के बस वोट बेचने वाले अरकान अवाम की भलाई के लिए क्या करते होंगे? जो अरकान पैसे पर बिक जाते हैं, इन्हें मुल्की या अवामी मुफादात की कितनी फिक्र होगी? सवाल ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसे लोगों के खिलाफ थे, तो ऐसे लोग 2018 में पार्टी में शामिल क्यों किए गए? ऐसे लोग इल्जामात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की काबीना का हिस्सा कैसे बन गए? और इसके साथ साथ बात करेंगे उबैदुल्लाह मायार साहब के इल्जामात, जिनका ये दावा है कि हुकूमत ने इन्हें तरक्याती कामों के लिए पैसे देकर ये वीडियो बनाई। उनका कहना था कि उन्होंने पैसे जरूर वसूल किए, लेकिन ये पैसे हुकूमत ने अरकान असेंबली को तरक्याती कामों के लिए दिए थे, ताकि 2018 के सेनेट इंतखाबात के लिए साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली उबैदुल्लाह मायार ने यह भी दावा किया कि हर एक रुकन असेंबली को स्पीकर हाउस में फी का 1 करोड़ रुपए दिए गए। पैसे भी हुकूमत ने दिए और वीडियो भी हुकूमत ने ही बनाई। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा की। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वजीर कानून जिनसे इस्तीफा लिया गया वो कौमी वतन पार्टी के एमपीए थे जब ये वीडियो जो है बनाई गई थी, तब भी उन पर इल्जामात लगे, लेकिन फिर हमने देखा कि उसके बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अपनी पार्टी से तो हमने देखा कि 20 लोगों को निकाल दिया जाता है इस तरह के इल्जामात के ऊपर, लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस तरह के लोगों को शामिल भी कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो हमारी पार्टी के लोग थे, हमें उनके बारे में जिनके बारे में इत्तला मिली उनके बारे में उसी वक्त इमरान खान साहब ने, पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने उसी वक्त एक्शन लिया था। और जो लोग दूसरी पार्टियों से आए डेफिनेटली उनके बारे में हमें नहीं मालूम था। और जब वीडियो आई है तो मेरे ख्याल से पूरी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ीर-ए-आला साहब से कहा है कि उसके जो वजीर साहब है उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। उनसे इस्तीफा ले लिया गया। मेरे ख्याल से यही पार्टी कर सकती है और ये वाहिद पार्टी है जो इस्तीफा। सही, लेकिन उबैदुल्लाह मायार साहब की जानिब से तो बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम सामने आया। वो ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए उस वक्त के जो वज़ीर आला थे परवेज खटक साहब, उन्होंने कहा था और ये पैसे जो हैं ये तरक्याती फंड्स की मद में दिए गए थे। देखिए, वज़ीर आला उस वक्त जो थे परवेज खटक साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह की बात कर सकते हैं वज़ीर आला कि वो किसी एमपीए से कहें कि जाए फलां जगह से आप पैसे ले लें। ये कभी बैन नहीं, और उनको क्या फायदा हो सकता है उसमें? तो मेरे ख्याल से अब ये तो उनकी तरफ से इल्जाम है, इसका जवाब बेहतर तौर पर खुद ही दे सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यूसुफजई साहब ना सिर्फ ये बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ये जो पैसे हैं ये भी हुकूमत ने दिए, वीडियो भी जो है वो हुकूमत ने बनवाई, बल्कि उनका ये कहना है कि ये पैसे दिए भी गए तो वो स्पीकर हाउस के अंदर दिए गए थे। इस हुकूमत ने वीडियो नहीं बनाई, ना हमें इसकी जरूरत थी। देखें, जो वीडियो सामने है डेफिनेटली जो लोग अपने ज़मीर देख रहे थे तो उनको सोचना चाहिए था कि ये चीजें सामने आ सकती हैं और कभी कोई चीज छुपती नहीं है। जब भी सेनेट के इंतखाबात में वोटों की खरीद फरोख्त की तो बिल्कुल दूसरे दिन पता चल जाता है कि किसने किसके ऊपर वोट बेचा है। तो ये तो वैसे भी अगर ये वीडियो ना भी आती तब भी देखिए वाइट कलर क्राइम है, इसका पकड़ना, इसके एविडेंस लेना ये बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इंफॉर्मेशन होती है और कुछ पार्टियां जो है वो इग्नोर करती जाती हैं क्योंकि खुद उसके लीडर्स में मुलविस होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के 5 मेंबरान थे पिछले दफा और 17 वोटों की जरूरत होती थी एक मेंबर को बनाए, एक सेनेटर को बनाने के लिए। तो 34 मेंबरों की जरूरत पड़ती, 2 सेनेटर भी उस पार्टी के कैसे इलेक्ट हुए? अब मेरे ख्याल से देखिए, सीधी सी बात है, हम जमहूरियत की बात करते हैं, क्या जमहूरियत का ये मकसद है कि करप्शन की जाए खुलकर और कोई पूछने वाला न हो? इसको जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत तो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग जा रहे हैं पैसों के बलबूते पे, वो लोग जाए जिनके पास कोई दिमाग हो, जिनके पास कोई कल हो, जिनके पास पाकिस्तान को बनाने की कोई उसके पास हो। ये क्या हम कर रहे हैं? पैसों के जोर पे लोगों को आगे ला के उनको भेज देते हैं अपर हाउस में। तो खास पाकिस्तान तरक्की करेगा जिसका लीडर खराब हो, उनकी मौजूदगी में तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से ये जो इमरान खान ने जो एक्शन लिया है और जो पहले से लिया है
ये बहुत बड़ी करेज मांगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो उस वक्त भी यूसुफ ज़ई साहब बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये ऐलान किया था कि वो इस मुतालिक नैब में जाएंगे और लोगों के खिलाफ मुकदमात भी जो हैं वो बनवाए जाएंगे, लेकिन फिर जिन लोगों को निकाला गया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इस वजह से ये नहीं हो सका जो कि खान साहब करना चाह रहे थे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जब अदालत आप जाते हैं ना, हाँ। तो अदालत आपसे बहुत सारे सबूत मांगते हैं, तो डेफिनेटली वो सारे सबूत तो आपको इकट्ठे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये तो हो सकता है आप एक पार्टी के सरबराह हैं और आपको पता है कि मेरे जो कुछ लोग हैं वो बिके हुए हैं, तो उन्होंने तो जरूरत की ना, चाहे उसमें सबूत थे या नहीं थे, जरूरत तो की ना, अपनी पार्टी से उन लोगों को फारिग किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने जो कुछ किया उसमें वो बिल्कुल दुरुस्त था और सबको ऐसा करना चाहिए था। नहीं, ठीक है, वो आपकी बात, आपने कहा जरूरत की, लेकिन ये मतलब तस्हीह के लिए होना चाहिए ना, दिखावे के लिए तो नहीं होना चाहिए। यूसुफ ज़ई साहब, साबिक एमपी फौजिया बीबी और मिराज हुमायूं साहब की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ पेशावर और सबाबी की जो अदालतें वहां पर हत्या की इज्जत का मुकदमा भी ज़ेर समाअत है और तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके वकला की जानिब से ही बार बार उसको इल्तवा का शिकार जो है वो किया जा रहा है, तो कोई ठोस शवाहिद मौजूद थे तो वहां क्यों जमा नहीं कराए गए? देखिए, मेरे ख्याल से अब तो वो केसेस भी वो होने चाहिए कि देखें इमरान खान ने जब उनको निकाला था तो देखिए एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर निकाला तो बात तो खदशात तो दुरुस्त साबित हुए ना। बहुत सारे लोग उसमें उनके तो सारे उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनके फोटोज आ रहे हैं, वो पैसे गिन रहे हैं, तो कुछ बात तो दुरुस्त साबित हुई है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करना चाहिए कि कम से कम जो अपोजिशन है, जो पीडीएम है, जो जल्द से जुलूस करे, जो जमहूरियत की बात कर रही है, आके बैठे ना। ये जो रोज हम कहते हैं कि फलाने दांधी कर ली, फलाने ये कर लिया, पैसा चल दिया, तो इसको रोकने के लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। ये जो मंडियां लगती है, इस मंडियों को रोकना चाहिए, मंडियों को खत्म करना चाहिए। इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि आए बैठे कि मंडियां खत्म करें, वो जनाब वो यहाँ से भाग रहे हैं। आप ऐसे इकबाल की तकरीर उठा के देखें, ऐसे इकबाल ने कहा था कि ये तो इसके खत्म करने के लिए हम कानून साजी करेंगे और ओपन बैलेट लेकर आएंगे। तो बहुत शुक्रिया यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा, बहरहाल एक बहुत बड़ा स्कैंडल जिससे ये चीज़ और वाज़ेह हो गई है। ये तो नहीं कहेंगे कि पहले लोगों को इल्म नहीं था या आवाम को मालूम नहीं था, लेकिन अब तो शायद वीडियोस की सूरत में शवाहिद मौजूद हैं कि वाकई मंडियाँ लगाई जाती हैं, बोलियाँ लगाई जाती हैं और लोग बिकते भी हैं और पैसों के ढेर भी लगाए जाते हैं। बहरहाल एक छोटा सा यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम देख रहे हैं कि स्कैंडल के बाद जो साख को नुकसान पहुंच रहा है वो पीपल्स पार्टी की साख को भी पहुंच रहा है, क्योंकि ये भी सबको मालूम है कि इन 2018 का जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अहम रोल रहा है। नफीसा शाह साहब एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद जानेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ इसी मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद होंगी, तो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी जमात की जानिब से, तहादियों की जानिब से सेनेट में ओपन जो बैलेटिंग है उसकी बड़ी शदीद किस्म की मुखालफत की जा रही है, लेकिन आज कुछ वीडियोज नफीसा साहिबा हमारे सामने आई जिनमें खुलेआम देखा जा सकता है कि किस तरीके से अरकान जो असम्बली है वो उनकी जो खरीदो फरोख्त है उसको वो जो है वो बेनकाब हुई है। उसके बाद तो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ जो है वो बज़ाहिर दुरुस्त भी नजर आ रहा है और शायद अगर ये कहें कि मजबूत होता भी नजर आ रहा है तो गलत नहीं होगा। पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं बात कि ओपन बैलेट की मुखालफत कभी नहीं की पीपल्स पार्टी ने। मुझे इत्तेहादियों का क्लियर मौक़िफ़ नहीं पता, लेकिन पीपल्स पार्टी ओपन बैलेट की कैसे मुखालफत कर सकती है जबकि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और जो कमिटी ऑफ द होल थी सेनेट में उसमें इनडायरेक्टली ओपन बैलेट का जिक्र है और वही मनवन जो कमिटी ऑफ द होल सेनेट ने जो रिकमेंडेशन दी है वही मनवन उन्होंने ऑर्डिनेंस में दी है। मसला सिर्फ ये है कि तरीक़ेकार जो हुकूमत का है और उनकी नीयत जो है उसके ऊपर शक है। अगर इनको इतना ही फिक्र था ओपन बैलेट और आईनी तरमीम का, तो खान साहब को कौन रोक रहा था कि पहले ही 3 माह में जब आपको अपोजिशन खड़े होकर अपोजिशन लीडर्स मुख्तलिफ जमातों के खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं,
जहां भी मुल्क का मसला होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। तो उस वक्त उनको इन इस्लाहात का उस वक्त उनको ख्याल क्यों नहीं आया? यानी अगर उस वक्त कर लेते तो हो जाती, तब आपको कोई जो है उस पर कबाहत नहीं थी, आप कोई तनकीद ना करते उसके ऊपर। तो बेसिकली आपको टाइमिंग्स का मसला है, ओपन बैलेटिंग से मसला नहीं है। प्रोसीजर से मसला है, टाइमिंग से मसला है, नियत से मसला है, तरीकेकार से मसला है। और दूसरा एक और बात पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया गया है। इस सबसे ज्यादा मसला इसके साथ है कि जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं उसको धज्जियां बिखेर कर आप एक जो चीज बुलडोज करना चाह रहे हैं। हो सकता है मकसद ठीक हो सकता है कानून भी ठीक हो, लेकिन जो तरीकेकार आपने अपनाया वो गलत है। और इसीलिए कंटेंट की मैं बात नहीं करूंगी, ओपन बैलेट के हवाले से मैं बात इस वक्त नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ तरीकेकार के ऊपर और जिस तरीके से उन्होंने सारे मामले को संभाले। ठीक है, जिस तरीके से यानी नियत की खराबी की बात भी आप कर रही हैं। तो तहरीक इंसाफ ने तो 2018 में भी अपने जो 20 अरकान थे उनको निकाला था पार्टी से, और उसके बाद फिर हम अभी भी देखते हैं कि एक एक्शन जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से सामने आ चुका है, वज़ीर कानून से उन्होंने इस्तीफा ले लिया है। दूसरी तरफ फिर ये सवाल भी उठता है ना कि जिन लोगों ने पैसे ऑफर किए, जो लोग खरीद रहे थे, जो खरीदार थे, वो कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, पहले तो ये इनका जो एक्शन है ना वो उन्होंने अगेन पॉइंट स्कोरिंग, मुझे बताएं QWP के वजीर, मैं यकीन से कहती हूँ कि ये जो सोर्स इन वीडियोस का है ये जरूर खान साहब या उनसे रिलेटेड कोई चीज है। तो जब उन्होंने QWP को वापस क्यों लिया, आज वो क्यों मिनिस्टर है? और सिर्फ इस बात पर इनको इनकी जो ईमानदारी है यहाँ पर शुरू और यहाँ पर खत्म होती है। BRT में क्यों छुप रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस में क्यों छुप रहे हैं? आज इनकशाफात आए हैं कि उनके अपने मुलाजमीन जो है उन्होंने फॉरेन फंडिंग जो है वो ली है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। आप अकबर एस बाबर का ट्वीट देख लें। तो ये नहीं, ये सिलेक्टेड खान साहब सिलेक्टेड सिस्टम के तहत सिलेक्टेड अपनी मॉरल जो अपनी अपराइटनेस है वो नहीं कर सकते। उनको अगर ये नहीं हो सकता कि आप अपनी सारी खराबियां अपनी काबीना में आप सबसे पहले तो अलीमा खान के ऊपर इनको रिजाइन करना चाहिए, सिलाई मशीनों के ऊपर। और उन्होंने खुद जो अच्छा, बैक टू दीस वीडियोस, नफीसा शाह साहिबा, साबिक वज़ीर परवेज खटक ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। उसकी फाइंडिंग्स के हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम से कम 20 MPs ने पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया था। ये वो इंक्वायरी कमेटी कहती थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार ख्याल जमान और मौलाना समील हक जो है वो इलेक्शन हार गए थे। और फिर हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी के जो 2 उम्मीदवार हैं, बहरमन तंगी और रुबीना खालिद साहिबा जो है वो इलेक्शन जीत गई थी। तो बजाय तो ये लगता है कि वोट इन्हीं अरकान के लिए जो है या उनकी जानिब से खरीदे गए हो सकते हैं या उनके लिए खरीदे गए हो सकते हैं। और PP रुकन मोहम्मद अली शाह साहब जो है वो पैसे बांट रहे हैं, वीडियो में बड़े साफ तरीके से ये देखा जा सकता है। मैं इस पे आपको एक बता दूं, देखिए आयशा बीबी, एक बहुत कंफ्यूजन है इस वक्त, इन्होंने कंफ्यूजन मचाया हुआ है। पहले एक ढोल लेकर इन्होंने ढंडोरा पीटा शो ऑफ हैंड्स का, शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड सेनेट इलेक्शंस में नहीं हो सकता। अब फिर इनके जब ये खालिद जावेद साहब जो लीगल विजर्ड है, इन्होंने जब बात समझाई कि शो ऑफ हैंड्स नहीं हो सकता, फिर उन्होंने आके ओपन बैलेट की बात की। सेनेट के इलेक्शंस सिंगल 2 चीजें याद रखने की जरूरत है इसमें। फर्स्ट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक शख्स का 1 टाइम वोट ही इस्तेमाल होगा। दूसरा ये है कि आपकी प्रेफरेंसेस भी होती हैं। तो मैं जब वोट का इख्तियार अगर करूंगी तो मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक 4, 5 जितने भी मेरे प्रेफरेंसेस हैं मैं वो दूंगी जब एक शख्स के जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स है टू विन वो पूरे हो जाते हैं। तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइसेस भी होती हैं। इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर आपके वोट उस पूरे नहीं है एक मेंबर के इलेक्ट होने से तो आपको सेकंड प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर आप जीतते हैं। रुबीना खालिद साहिबा प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर जीती हैं और गिव एंड टेक होता है। आपको सेनेटर्स गिव एंड टेक करते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है पार्टीज गिव एंड टेक करेंगी, पार्टीज नेगोशिएट करते हैं कि ठीक है अगर हमारे पास सपोजिंग हम आपको जनरल सीट पर सेकंड प्रेफरेंस दे देंगे तो आप हमें विमेन सीट पर एक प्रेफरेंस दे दें। और ये फ्रैक्शंस पर भी नंबर्स बनते हैं
ان بیوقوفوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے. جب جس کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ شو آف ہینڈز اور اوپن بیلٹ میں فرق کیا ہے, تو پھر آج اوپن بیلٹ سے بھی آپ کے ویسے ہی نتیجے نکلیں گے. ایک آدھوں کا آپ کا فرق ہوگا, ورنہ یہی ہوگا. اور جہاں چھوٹی جماعتیں جو ہیں اس سے پریفرنشل سسٹم سے, سنگل ٹرانسفربل ووٹ سے چھوٹی جماعتیں اس وقت بینیفٹ ہوتی ہیں جب آپ سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ پریفرنسز پر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھیں, خان صاحب کے پاس یہ اسکل تو ہے کہ کسی کو گندا کیسے کرنا ہے, اگریسو ایک پارچرنگ کرنی ہے, گالم گلوچ کرنا ہے. ان کے وزیر 24/7 جو ہے وہ ٹی وی پر یا چلیں اب یہ نفیسہ صاحبہ ابھی آپ الزام لگا رہی ہیں تو پھر یقیناً میرا خیال ہے کہ آپ لوگ تو چاہیں گے کہ اس چیز کی جو ہے وہ انکوائری ہو, پتہ چلے آخر یہ کون لوگ ہیں جو خریدنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے خاص طور پر جن سے خریدا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور الزام بھی آپ لگا رہی ہیں, تو یقیناً آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تحقیقات تو ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور اس میں جو بھی ملوث ہے ان کو سزا ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لوگ اگر یہ لوگ اس میں ملوث ہیں, ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں, خرید و فروخت ووٹوں کی ملوث ہیں, ان لوگوں کو پرماننٹلی ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے. اور خان صاحب نے QWP والے لوگ کیوں لیے؟ دیکھیں وہ بھی پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ مووز ہیں ان کے بھی. کیوں انہوں نے, جب ان کو پتا تھا کہ QWP کا ابھی ان کا وزیر بیٹھا ہوا ہے, وہ ابھی اس کو بلا کر آپ اس کو اب آپ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں, کتنے دفعہ ان سے استعفیٰ لے کر آپ ان کو واپس وزیر بنائیں گے؟ اور آپ یہ لکھ لیں کہ پھر سے یہی لوگ یہ واپس لیں گے جب ان کو ضرورت پڑی ووٹوں کی. تو یہ بھی وہی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی والی بات کر رہے ہیں. ان کو اگر ان کی آنیسٹی ہوتی اور تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہ ہوتے, دوہرے معیار نہ ہوتے. ان کے وزیر جو ہے ڈیول نیشنل ہے, فیصل گوڈا ڈیول نیشنل ہے, کیوں نہیں ڈسکوالیفائی ہوتے؟ کیوں نہیں کورٹس ان کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ ان کے ڈرائیور کے نام پر ان کے اثاثے ہیں, کیوں نہیں ڈسکوالیفائی ہوتے؟ رزاق داؤد کو اتنے بینیفٹس ملے ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا؟ ندیم بابر کا آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے. ان کے جو وزیر ہیں ایک جو فوڈ سیکیورٹی والے, خسرو بختیار, ایسٹ بیونڈ مینز کے ان کا کیس کب سے چلا ہوا ہے, کیوں نہیں ان کے اوپر کچھ کام ہوتا؟ ان سے کیوں نہیں استعفیٰ لے لیتے وہ؟ تو پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ پالیٹکس جو ہے وہ آخرکار ایکسپوز ہوگی. اگر آپ اصول پر تھے, اگر آپ اصول پر ہیں, تو آپ کو اپنے طریقہ کار بدل کے پہلے سٹیپ میں آپ کو یہ سارے ریفارمز کرنے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. سیاسی مفادات کا الزام لگ رہا ہے, ڈبل سٹینڈرڈز کا الزام لگ رہا ہے. اگر ایک طرف 20 جو MPs ہیں ان کا نکالا جاتا ہے, تو اور بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ نفیسہ صاحبہ نے دی کہ وہاں پر بھی چیزیں جو ہیں وہ درست کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف ایک طرف آپ شو آف کرنے کے لیے جو ہیں وہ چیزیں نہیں کر سکتے. بہرحال یہ تو الزامات کی سیاست ہے, ایک طرف سے الزامات دوسری طرف لگائے جاتے ہیں, دوسری طرف سے پہلی طرف لگائے جاتے ہیں الزامات. تو یہ الزامات کی سیاست کا ایک سلسلہ ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عوام کے ٹرسٹ کو ہوتا ہے, عوام کے بھروسے کو ہوتا ہے. اس طرح کی جب ویڈیوز سامنے آتی ہیں تو پھر ایک عام آدمی جو ہوتا ہے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے سسٹم کے اوپر سے, اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے جمہوریت کے اوپر سے, اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اس ووٹنگ کے جو تمام عمل ہے اس کے اوپر سے. اور پھر ایک عام آدمی جب بیٹھ کے الیکشن ڈے پر سوچتا ہے کہ آخر ووٹ ڈالنے جانا ہے تو کیوں جانا ہے, جب پہلے سے پری پلانڈ ہیں یہ چیزیں, لوگ بکے ہوئے ہیں, تو کس پر اعتماد کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ میں بدی کبھی اپنی اصلی شکل میں سامنے آنے کی جرات نہیں کرتی, بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی نیکی کا لبادہ اوڑھ کر ہی سامنے آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں پیسے کی حوث اخلاقی پستی کے ساتھ ساتھ کرپشن, قتل و غارت اور بے حسی کی بنیادی وجہ بن چکی ہے. زوال کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اس معاشرے کی کس بات کا رونا رویا جائے. ہر رنگ کی ذلت اس معاشرے کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے. سینٹ کے الیکشن میں ووٹ بیچنے کے بدلے اسمبلی ممبران پیسے لیتے تو آپ نے دیکھ لیے ہیں. بے حسی, لوٹ کھسوٹ, بدعنوانی, کرپشن, لاقانونیت, صفاقانہ قتل اور خواتین کی عصمت دری کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر رونما ہوتے ہیں. مگر ایسا منفرد واقعہ جسے سن کر انسان یہ
सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम किस तरह के मुआशरे में रह रहे हैं आखिर। क्या ये इंसानों के रहने के काबिल भी है या नहीं? अटक की तहसील पिंडी घेप में इंसानों के साथ दरिंदा सिफ्त लोग भी बसते हैं जो बेहिस होने के साथ साथ शायद अल्लाह के अजाब से भी नहीं डरते। बोलने, सुनने, देखने और चलने की सलाहियत से महरूम सुनहरा बीबी इंसाफ की मुंतजर है। बेटी गुलजार बीबी का कोई सहारा नहीं है। मुल्जिमान ने आबाई जमीन भी छीन ली और घर का वाहिद कफील भी कत्ल कर दिया। अब ना रहने को छत रही, ना जीने का कोई सहारा रहा। 2 महीने तक पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। सुनहरा बीबी और गुलजार बीबी धक्के खाती रहीं। साइलीन ने DP ऑफिस जाकर दरखास्त दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। FIR भी मकामी सहाफियों की मदाखलत से दर्ज हुई। नूर मोहम्मद जो कि एक रिटायर्ड फौजी है ने मेहनत की कमाई से चंद कनाल जमीन खरीद ली और अपनी बीवी और बेटी के साथ तहसील पिंडी घेप के गांव मलहुवाला में जिंदगी गुजार रहा था और इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा उसकी जमीन थी। इंसानों की शक्ल में इस इलाके में मौजूद फहद महमूद उर्फ सेठू ने महबूब हुसैन, मुश्ताक अहमद, हिदायत और मोहम्मद जुबैर से गठजोड़ के साथ रिटायर्ड फौजी मकतूल नूर मोहम्मद को राजी किया कि वो अपनी जगह बेच दे और अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा करा दे ताकि माहाना 40,000 रुपए वसूल करके इसकी नाबीना और माजूर बीवी और नाबीना बेटी अपना गुजर बसर कर सकें। सादा लो देहाती नूर मोहम्मद मुल्जिमान के बहलावे में आ गया। मुल्जिमान ने नूर मोहम्मद की 150 कनाल से जायद आबाई जमीनें बेचकर बैंक में जमा कराने की बजाय 1,07,00,000 से जायद की रकम हथिया ली और अपना जुर्म छुपाने के लिए नूर मोहम्मद को जहर देकर कत्ल कर दिया। गरीब खानदान ने इसे अल्लाह की रजा समझते हुए दफना दिया, लेकिन एक ऐनी शाहिद को शक गुजरा कि नूर मोहम्मद तबई मौत का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि इसे मुल्जिम फहद महमूद उर्फ सेठू ने मशरूब के अंदर कुछ मिलाकर कत्ल किया। इस वाक़े की रूनुमा होने के बाद नूर मोहम्मद के भाई हाकिम खान ने खोड़ चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए राब्ता किया तो पुलिस ने FIR के अंदराज से इनकार कर दिया। मकामी नौजवान, सियासी और समाजी कारकुनान की तगोदो से कब्र कुशाई वहां पर की गई और पोस्टमार्टम भी किया गया, जिससे यह साबित हो गया कि मकतूल नूर मोहम्मद तबई मौत का शिकार नहीं हुआ। इसके बावजूद लवाकीन चौकी के चक्कर काटते रहे और पुलिस मामले को टालती रही। लवाकीन और अहले इलाका ने प्रेस क्लब फतेह जंग से राब्ता किया और खबरें टीम की मुदाखलत के बाद मुतासरा फैमिली की FIR जो है वो दर्ज हो सकी और तफ्तीश का आगाज हुआ। नौसरबाज गिरोह इलाके में पहले भी कई वारदातों में मुलविस रहा है। आज भी मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं। पुलिस और हुकूमत अंधी बीवी और बेटी को अभी तक ना तो इंसाफ दे सके हैं और ना ही लूटी हुई रकम, क्योंकि मुल्जिमान को सियासी पुष्पनाही हासिल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा है यासिर महमूद, पिंडी घेप जिला अटक से। बहुत शुक्रिया यासिर। मुझे ये बताएगा कि आप गए हैं इस इलाके में, फॉलो किया आपने इस स्टोरी को, अभी क्या सूरत हाल है स्पेशली उस खानदान की, स्पेशली उन 2 खवातीन की जो कि माजूरी का शिकार हैं, किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है उनका? जी बिल्कुल जी, ये एक दिल हिला देने वाला वाक़या और नुमा हुआ है। नूर मोहम्मद एक फौजी रिटायर बुजुर्ग थे जिनकी बीवी भी नबीना थी और एक ही बेटी थी, वो भी नबीना थी। अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बसर कर रहे थे, फिर अचानक उनकी खुशियों को नजर लग गई और एक फराडिया ग्रुप उनके गले आन पड़ा, जिसमें महबूब सीटू नामी एक फराडिया है जो धोखाधड़ी से लोगों को लूटते हैं। नूर मोहम्मद को कहा हमारा कोई बेटे भी नहीं, ऐसे करो कि अपनी जमीन बेच दो और जो पैसे आएंगे जमीन के उनको आप बैंक में जमा करवा दो और आपको हर महीने 40,000 रुपए मिलते रहेंगे। बुजुर्ग भी उनके फ्राडियों के झांसे में आ गए और अपनी जमीन 1,03,00,000 रुपए में सेल कर दी। जो जमीन के पैसे थे अब उन्हें सेव भी करने थे, तो इस पे सेठू और महबूब ने कहा कि आप हमें ये पैसे दे दो, आप एक जंगल इलाके में रहते हो, हम ये आपके पैसे आपके बैंक में जमा करवा देंगे। अच्छा। मुस्लिम जो थे सादा थे, उन्होंने कहा कि चलो यार ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, ये पैसे आप ले लो और मेरे मेहरबानी करके मेरी बेटी के नाम का अकाउंट ओपन करवा दो। और पैसे वो ले गई और उसके बाद दोबारा ना ही उन्होंने कॉल उठाई और ना ही राब्ता किया। और जब हमने पूरी तहकीक की, इस बात की, तो हमें पता चला कि सेठू और महबूब इससे पहले भी कई दीगर वारदातों में मुलव्वस पाई जाती। अच्छा, कत्ल तक नौबत पहुंची कैसे, मुझे ये बताइएगा यासिर। क्या मुतालबा किया गया नूर मोहम्मद की जानिब से कि रकम जो है वो वापस की जाए? फिर नूर मोहम्मद ने क्या कुछ और लोगों को भी बताया, किसी के और के इल्म में ये बात थी? नहीं बिल्कुल मैडम, बात ऐसे है कि जो नूर मोहम्मद थे वो गांव से बिल्कुल साइड एक जंगल के एरिया में रहते थे। अच्छा। जो सेठू और महबूब है वो उनके दोस्त से 3-4 महीने से उनके घर चक्कर लगा रहे थे। अच्छा। उन्हें ये मालूम था कि जो नूर मोहम्मद है उनका कोई बेटा भी नहीं है और उनके पीछे भी कोई आने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पूरी गेम खेली है और गेम के जरिए उन्होंने नूर मोहम्मद को जहर दे के मार दिया। तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि मुलजिम पकड़े नहीं गए, आखिर किसकी पुष्पनाही है उनको, कौन लोग उनको बचा रहे हैं, कुछ पता चल सका है? ना रकम वापस मिली है, ना ही वो लोग पकड़े जा रहे हैं।
ہاں جی بالکل، ہماری اس حوالے سے ایچ آئی یو ٹیم تھانہ پنڈی گیٹ سے جب رابطہ ہوا تو جو ایچ آئی یو آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ جو ملزم ہیں ان 5 میں سے 4 ملزمان نے اپنی عبوری ضمانتیں کروا رکھی ہیں اور ایک جو ہے وہ لاپتہ ہے۔ اچھا، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ ملزمان جو ہیں وہ قتل کا اقرار کر چکے ہیں، کوئی اقرار نامہ بھی موجود ہے؟ جی بالکل، جو سیٹو تھا اس نے قتل کا جو ہے ڈرامہ کیا تھا، اس نے اقرار کیا تھا اور باقاعدہ حلف جو دیا تھا، اور یہاں پہ جگہ بھی منعقد کیا گیا تھا یہاں پہ گاؤں میں، اس نے خود کیا تھا کہ میں اس قتل میں ملوث تھا، میں نے جو پیسے لیے تھے وہ پیسے میں واپس ضرور کروں گا، اور اس نے ٹائم دیا تھا کہ اتنے دن کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، میں آپ کو پیسے واپس دے دوں گا، مگر اس کے بعد دوبارہ وہ واپس گاؤں میں نہیں آیا۔ صحیح یاسر، تو ملزمان تو پہلے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک ریکارڈ تھا پولیس کے پاس، وارداتوں میں ملوث تھے، تو آخر ان کو کھلا کیوں چھوڑا ہوا تھا؟ اس طرح کی وارداتیں کرنے کے لیے پکڑا کیوں نہیں گیا؟ جی میڈم، بات اس طرح ہے کہ جو ملزم ہے سیٹو، اس کے جو ریکارڈ ہم نے چیک کیا ہے تھانہ پنڈی گیٹ سے بھی، گاؤں کے لوگوں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بھی یہ زمینوں کے حوالے سے دھوکے بہت لوگوں سے کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نور محمد کے بھائی حاکم خان جو ہیں وہ موجود تھے، انہوں نے ایک پیغام اپنا ریکارڈ کرایا ہے، میں چاہوں گی کہ وہ پیغام ہم اپنے ناظرین کے لیے سنا دیں اور اس کے بعد پھر بات کریں۔ اسا زمینی بچت کر کے قتل کر دیتا گیا، حکومت کے التجا ہے کہ انصاف دیتا مجھے، جنرل باجوہ صاحب وہ فوجی ریٹائر تھا، اس کو انصاف دیا جائے، آپ کی مہربانی ہوگی، یہ نبینیاں بچی اور یہ بیوہ عورت نبینی ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے آپ مہربانی کریں کہ انصاف